ایک واقعہ جو ہے بڑا میرے ذہن میں نہیں میں پھر نکل جائے گا. 79 کا ایک بڑا زبردست واقعہ ہے. ویسے تو بے شمار واقعات، لیکن یہ ایک واقعہ جو ہے وہ میں کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا کہ اس نے مجھے کتنا بڑا حوصلہ دیا. مسعود کی وجہ سے میں ذوالفقار علی بھٹو کا کیس کور کر رہا تھا سپریم کورٹ میں. مجھے خبر ملی کہ چیف جسٹس انوار الحق وہ سربراہ کے بینچ کے لیے کہ چیف جسٹس کو گرین ٹیلی فون کا ایکسیس مل گیا. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کسی چیف جسٹس کو گرین ٹیلی فون وہ ٹیلی فون ہوتا ہے جو عام طور پر سربراہ مملکت، وزیر اعظم، منسٹرز اور جو اہم شخصیات ہیں پاس ہوتا ہے یہ گرین ٹیلی فون. لیکن کسی جج کے پاس یہ سہولت نہیں تھی. یہ پہلی دفعہ انوار الحق کو جاؤلت میں سہولت. یہ خبر جو ہے میں نے چھاپی تعمیر میں فرنٹ پیج پہ لگی کہ چیف جسٹس کو گرین ٹیلی فون کی سہولت مل گئی. تو صبح جب پروسیڈنگ شروع ہوئی تو مجھے چیف جسٹس نے کھڑا کیا کہ یہ تعمیر کے کون صاحب ہیں طاہر خلیل، کیونکہ میرے نام سے کبھی مجھے کھڑا کیا تو میں نے کہا کہ میں نے یہ خبر دی. تو مجھے روسٹرم کو بلایا. انہوں نے کہا جی کہ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کو کس نے دی ہے خبر. تو میں نے کہا جی یہ خبر میرے سورس نے دی تھی. کیونکہ سورس کا نام کیا ہے؟ سورس کا نام تو ہمارے پاس تو ایک ہی چیز ہوتی ہے سورس، تو اس کا نام تو نہیں بتایا کرتا. تو کہیں گے آپ کو پتہ ہے کہ یہ خبر جو ہے وہ آپ پر کنٹیمپٹ بھی لگ سکتی ہے اور 6 مہینے قید ہے. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ 11 بجے جو بریک ہوگا اس میں رجسٹرار تھے ایم اے لطیف، ان سے ملے. اور مجھے نظر آ رہا تھا کہ اب کنٹیمپٹ جو ہے بالکل سامنے آ رہی ہے. جب یہ بریک ہوا تو میں نے مسعود ولی کو فون کیا. مسعود ولی گوالنٹی میں رہتے تھے، شادی بھی بہت دور کی بات تھی. تو میں نے مسعود کو فون کیا. میں نے کہا کہ وہ یہ خبر جو چھپی ہے تعمیر میں آج اس پہ مجھے کنٹیمپٹ کا انہوں نے کہا ہے کہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ رجسٹرار سے ملیں. تو میں رجسٹرار کے پاس جا رہا ہوں اور اگر ہو سکے تو آپ بھی آئیں. حالانکہ انٹری بین تھی اور سب مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر برگیڈیئر راحت لطیف خود سپریم کورٹ آیا کرتے تھے ڈیلی پروسیڈنگ میں، اور وہ بالکل تیار تھے یہ لوگ مارشل لاء والے کہ اس نوجوان جرنلسٹ کو اٹھانا ہے اور اس کو اندر لے جانا ہے. لیکن مسعود ملک پہنچا ہے وہاں پر اور اس کے ساتھ اس روز سعود صاحب نہیں آئے. سعود صاحب کو بھی بلوایا، 3-4 اور جرنلسٹ کو بلائے، ایم اے لطیف کے پاس گئے اور ہم نے اس سے قائل کیا کہ اگر یہ خبر غلط ہے تو آپ خبر کی ترتیب دے دیں، ہم اسی طرح چھاپ دیں گے. لیکن اس بنیاد پر اگر خبر صحیح ہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے خبر کو اگر صحیح ہے. کیونکہ ہم تو یہ وہ اصرار کر رہے تھے کہ ہم نے سورس بتائیں، لیکن مسعود ملک نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم سورس نہیں بتائیں گے اور آپ کو یہ خبر جو ہے یا تو صحیح ماننا پڑے گی یا غلط ماننا پڑے گی. درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے اس میں. اور مسلم مدد کی بات بطور رپورٹر میں سب ایڈیٹر تھا. میں نے صحافت نہیں پڑھ رکھی تھی بطور مجبور، لیکن بہرحال نظامی صاحب نے ٹیسٹ لیا اور ہم کافی بڑا ایک ذہین آدمی، وفادار، دوستی نبھانے والا، بہادر ہے. تو وہ میں ظاہر ڈیسک پہ بیٹھتا تھا. وہ رپورٹنگ میں کبھی کبھی افسانوی انداز بھی اختیار کرتے تھے. وہ کچھ نہ کچھ بیان کرنا چاہتے. تو کبھی کبھی میں دیکھتا تو میں کچھ چیزیں قلم زد کر دیتا. یار رپورٹنگ میں تو ابھی یہ نہیں، لیکن ان کی جدت ترازی، ان کی بہادری، وہ انہیں اور سیاسی سوجھ مشورے دینا. میاں نواز شریف کے قریب انہیں
ان کی یہ چیزیں لے کے آئی. میاں صاحب یہ کہتے تھے کہ یار مسعود ملک بڑا برینی ہے, بڑا ذہین ہے, یہ ان کی خاص کوالٹی. پھر بہادری کا مظاہرہ آپ نے دیکھا کہ جس کی بنیاد پر انہیں اپنا ان سے روزگار بھی چھین لیا گیا. تو اس حیثیت میں اگر میں یہ کہوں کہ زمین آ گئی آسمان کیسے کیسے, تو یہ درست ہوگا کہ وہ صحافت کے آسمان کا ایک ستارہ تھا, اور اس کی موت جو ہے وہ کسی عام آدمی کی موت نہیں, ایک اچھے بڑے قومی معاملات سے آگاہ, سیاسی امور جاننے والے, ملک و قوم کے مفادات سے آگاہ, اور اس پر جب کچھ چیزیں غلط ہوتی تھیں تو ان کا ضمیر اٹھتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بنیادی خوبیاں ہیں جو کسی بھی انسان کو اچھا انسان, باضمیر انسان اور باکردار انسان بنانے کی وجہ کافی ہے. باقی مسعود ملک اور فواد رضا صاحب بہت ہی کٹھن, کیونکہ میں تو نوائے وقت میں کل 9.25 مہینے رہا, اور اس کے بعد مجھے وہاں سے نکلنا پڑا. بعد میں پھر پی پی آئی میں ایک باہر کا اخبار تھا ڈیلی الاتحاد, یہاں ایک اور یونیورس تقریباً تینوں میں نے کام کیا. میری صحافت کی کل جو ہے خدمات وہ 7 سال. وہاں سے پھر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کچھ میری بھی سوچ بوجھ جو تھی وہ اللہ بخشے مسعود ملک صاحب سے ملتی جلتی تھی. تو میاں صاحب کے قرب اور پھر پریس سیکرٹری بننے کی وجہ بھی وہ تھی. تو میں دعا کرتا ہوں کہ رب العزت ان کے بھائی سامنے بیٹھے ہیں, ان کے خاندان کو, ان کے دوست احباب ان پر رحمت نازل کرے اور ان کو طاقت عطا فرمائے, اچھا کردار. نواز رضا صاحب کا شکریہ کہ وہ ایک اچھے آدمی کی آج تیسری برسی بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کرم کرے. ویسے میں نے پچھلے ایک تقریر میں یہ کہا تھا کہ کیا وہ شعر تھی کہ باندھے ہوئے سب یار بیٹھے ہیں, بہت ہیں باقی گئے, بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے. وہ صورتحال ہے. یا داغ نے کہا تھا کہ ہوش و حواس و تاب و تمام, داغ سب گئے, اب ہم بھی جانے والے ہیں, سامان تو گیا. باقی ایک دو جملے اور کہہ کے اجازت لوں گا کہ دیکھیے, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. اور ساتھ حدیث رسول ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ. اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کیا ہے, یہ ایک دھوکہ سا ہے. ساتھ یہ بھی ہے کہ کھیل تماشا ہے, لیکن یہ کھیل تماشا ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ اڑا دیں, میں اڑا دوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, اس میں جو کچھ ہم بوئیں گے وہ کاٹیں گے. اور علامہ اقبال نے جو کہا کہ آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ, دم دے نہ جائے ہستی ناپائیدار. آپ کی ہستی ناپائیدار ایک شرار کی مانند ہے, لیکن شرار ہے, اس سے وہ چاہے تو آگ بھی لگا سکتا ہے اور روشنی بھی دے سکتا ہے. تو رب العزت ہمیں توفیق دے کہ جتنی بھی ہماری زندگی باقی ہے, جو نوجوان ہیں ہم میں, وہ اس اپنی زندگی کو معاشرے کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, سب کے لیے شمع بنائیں. اللہ تعالیٰ مسعود ملک صاحب کی آخرت سنوارے, ہم سب کے گھروں میں اور عمر اور رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے, اور ہمارا خاتمہ ہے ایمان پر. بہت بہت شکریہ. مسعود ملک صاحب سے میرا پہلا تعارف شاید 1991 یا 92 کے بعد ہوا. تو نوائے وقت چھٹی میں جب پہنچا ہوا تھا تو رپورٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے,
بھائی کے ساتھ، تو اس وقت پیار محبت سے وہ پیش آتے تھے. پھر زیادہ تعلق ان کے ساتھ اس وقت بنا جب 93 میں مسلم اپوزیشن میں آئی، تو ہم مسلم لیگ نون کی بیٹ آفس صاحب اور 4-5 کام کر رہے تھے. مسعود ملک صاحب کی شخصیت یہ تھی کہ وہ بڑے کے ساتھ ان کا ہنسی مذاق کا رشتہ ہوتا تھا، لیکن چھوٹے لوگوں کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتے تھے اور سکھاتے بھی تھے کہ بھائی یہ چیز اس طرح کرنی ہے، یہ بات ہے اس طریقے سے کرنی ہے. تو اس لیے فاروق صاحب نے نواز شریف صاحب سے غربت کا لیکن کہ ہم سب یہ سب سے غربت بنی. تو مسعود ملک صاحب لکھتے تھے تو پھر یہ سب کہتے تھے یہ پڑھے لگا، تو پھر ان کو پڑھ کے سنائی ہوتی تھی بات، تو بڑے سیٹسفائڈ ہوتے تھے کہ یہ فکر ہے اور سارے آپ ان کی کاپی یوز کریں. وہ پھر میاں صاحب کو بتایا جاتا تھا کہ ایک کاپی یار اخبار کی ڈفرینٹ ہوتی ہے تو یہ نہیں کر سکتے. پھر امریکہ کا ایک دورہ ہم نے اکٹھا کیا تھا، اس دورے میں بہت کچھ ان کے ساتھ یادیں ہیں. اس طرح آج بھی تصویریں میرے پاس موجود ہیں. اعظم ملک صاحب تھے، اعظم صاحب سیکٹری بن کے ریٹائر، وہ 80 میں تھے. تو مجھے جو آخری لمحات تھے ابھی اے پی پی کے طور پہ دو تین یاد ہیں. جب ان کا کیس گیا اور چودھری نثار صاحب نے یہ صاحب کو ذکر کیا کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا، مجھے اور عامر ریاض کو صاحب نے کہا کہ آپ بیوروکریسی میں گھومتے پھرتے رہتے تھے، یہ فائل کبھی اسٹیبلشمنٹ میں چلی جاتی، کبھی کیبنٹ میں لے جاتی، کبھی اسٹیبلشمنٹ کوئریز لگتی رہتی. ہم پہ مکین سیکٹری کے پاس گئے، اس کو پاس کر کے چلا کے ملک صاحب کو بتایا. تو انہوں نے ایز ایم ڈی اے پی پی اس ادارے کی بہتری کے لیے، حالانکہ ایم ڈی میں بڑے اے پی پی میں بڑے مسائل بھی ہیں، یونین بھی ہے، لیکن پروفیشنل جرنلسٹ کے طور پہ اس ادارے کو آگے بڑھانے میں بڑا کردار ادا کیا. اب ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ جو ان کے بچے ہیں آپ ہیں اور اللہ تعالیٰ ملک صاحب کو میری اے پی پی میں کوئی 23-24 سال سروس ہو گئی ہے سر. اظہر سہیل کو بھی ہم نے دیکھا، فواز شاہ صاحب آئے، اس کے بعد یہ شراز لطیف صاحب کو بھی ہم نے دیکھا. جو مسعود ملک صاحب نے وہاں پہ، میں ان کے احترام کو اب عقیدت سے میں نے تبدیل کیا ہے کہ مجھے ان سے عقیدت ہو گئی، جس وجہ سے کہ یہ 24 سال کی زندگی میں جو اے پی پی میں نے سر کیا ہے، یہ وہ واحد ایم ڈی تھے سر کہ جنہوں نے اپنی لگن اور اپنا تعلق جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی چھوڑ دیا. اور یہ وہ پہلے ایم ڈی تھے ہمارے جنہوں نے وہاں ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میلاد کا باقاعدہ اہتمام کیا. یہ 24 سال میں کسی اور ایم ڈی کو یہ تفریح نہیں ہوئی. اور پتہ نہیں کہ تھوڑا سا غیر مناسب ہوگا کہ جو ایم ڈی ان سے پہلے چھوڑ کے گئے تھے وہ محفلیں تو وہاں بہت کرتے تھے، لیکن وہ رات کو شراب کی محفلیں کرتے تھے. تو انہوں نے آ کے ایک ایک کارکن کا، وہاں پہ ورکر کا جو ہے دل جیتا اس انداز سے کہ آج ایک میسج کے اوپر ہمارے یہ سارے دوست جو ہیں یہاں ہم عقیدت کے طور پہ آئے ہیں. وہ بہت سینئر تھے، بہت کچھ سکھایا، اے پی پی میں بہت ساری اصلاحات بھی انہوں نے کی. تو یہ ہوتی ہے سر، کوئی شخصیت رہ جاتی ہے کہ جو لوگوں کے لیے ایک ایسا درس دے جاتی ہے کہ جن کے لیے لوگوں کے اندر عقیدت بنتی ہے. جو ایم ڈی اے پی پی کے طور پہ انہوں نے وقت گزارا، میرے خیال میں کوئی بھی شخص اس دوران ایسا نہیں تھا جس کو ملک صاحب سے کبھی کوئی شکایت ہوئی ہو کہ جی وہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ وکٹمائزیشن کر دی ہے یا یہ. ہمیشہ انہوں نے کہا کہ میرا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور لوگ بلا جھجک ایسے جیسے کوئی اپنے بڑے کے ساتھ ملنے کے لیے چلا جاتا. دوسری انہوں نے جو چیز ہمیں کہتے تھے کہ یار میں خود ایک ایسا جرنلسٹ ہوں جو یونینزم پہ بڑا یقین رکھتا ہوں، اور ان کے دور میں انہوں نے اے پی پی میں یونین، حالانکہ ہر ایم ڈی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم یہاں یہ یونین بازی جو ہے اس کو ختم کر دیں، انہوں نے مضبوط کی. وہاں آج بھی ہم اگر آزادی سے ورکروں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں تو یہ تقویت انہوں نے دی ہوئی ہے. میں اس سے زیادہ ان کے لیے جو ہے وہ
कुछ कहने से कासिर हूँ। उनकी मोहब्बत है, अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत में आला मकाम सरफराज करे, उनके लिए उनकी कब्र को कशादा करे और अल्लाह ताला उनको बुलंद मकाम दे। थैंक यू। यूनिवर्सिटी से जो एमडी आते हैं हमेशा वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं दौड़ डालने की, मतलब ये ताकत के साथ। तो ये आए जिन्होंने प्यार के साथ सबको ज़्यादा डील किया कि मलिक साहब भी उसमें ट्रांसफ़र हुए, 174 ट्रांसफ़र किए इससे पहले, इनसे पहले वाले एमडी। तो ये जब आए तो इन्होंने, मतलब ये किसी ने इनको जाके कहा नहीं है कि जी आप ये कर दें, आप इन्होंने कहा यार जो जो विक्टिमाइजेशन हुई है सब वापस करो। पहले हफ्ते में सब कुछ वापस करना शुरू कर दिया। तो मलिक साहब भी पिंडी गए थे और भी कई सेक्शन ख़त्म कर दिए, कईयों को इधर भेजा, कईयों को उधर भेजा। मुलाकात के बाद जब भी उनको मिलते थे तो ऐसी मुस्बत, मतलब ये है कि रोज़ के मालिक थे। मैं एक दफ़ा सऊदीया जा रहा था तो मैंने इनको सिफारिश कराई, मैंने कहा जी वो छुट्टी चाहिए। तो मैं क्या, मैंने को लेके आ गया राजमा साहब। इन्होंने कहा यार आप जहाँ जा रहे हो आपको सिफारिश की क्या ज़रूरत है, आप इनको लेके आए हो कि राजमा साहब इनकी सिफारिश ना करें, मैं इनको छुट्टी दे देता हूँ। तो आप ये बस आप मेरे लिए वहाँ जाके दुआ करना, और अजमल साहब जो है आप सिफारिश आप करने की ज़रूरत नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो मुस्बत पर्सनैलिटी के हवाले से इनके ये जो है ये उनकी, मतलब ये उनकी शख्सियत का खासा था कि उन्होंने लोगों को परेशान नहीं किया, आसानियाँ पैदा की और हमेशा जो है वो अच्छे तरीके से को चलाया। मेरा भी ख्याल कि 12 साल में मैंने कभी ऐसा देखा हो कि किसी एमडी ने इतने अच्छे तरीके से चलाया हो, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंतज़ामी और सहाफ़ती दोनों हवालों से। मतलब ये है कि उन्होंने एक नई परसेप्शन भी लेके आए और उन्होंने इंतज़ामी वाले से भी उसको अच्छा चलाया। बहुत शुक्रिया। मैंने भी रात को कई दफ़ा अपने खबरें में सवाल में देख के आनी, खबर उन्होंने यानी लिख देनी और मैं बड़ा खुश होकर देख के चले जाना, बाद में वो सेंसर हो जानी है तो सुबह देखना तो वहाँ कोई नहीं। तो ये बड़ी बात है कि उस वक़्त में यानी प्राउड होता है कि बंदा मार्शल लॉ के दौर में काम किया कर। तो अब मैं ये समझता हूँ कि अगर काश कहीं आपका यानी ऐसे सीनियर सहाफ़ियों के लिए, अगर अभी ये देखें ना, ये जितने हम दोस्त हैं उनकी अकीदत में आए जो जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते, अब अखबारात का तो आपको पता है उनके लिए एक स्पेशल, जैसे आपके नेशनल सेंटर हुआ करता था, यानी बदनसीबी है कि नेशनल सेंटर बंद कर दिए गए, उसकी जगह ब्रिटिश सेंटर मौजूद है, अमेरिकन सेंटर मौजूद है। मैं समझता अगर नेशनल सेंटर बंद हो गए ठीक है, लेकिन आप अपने इस प्रेस क्लब में सीनियर सहाफ़ियों के लिए कोई ऐसा सिस्टम बनाए ताकि कम से कम कुछ मतलब है कि लोगों को पता तो हो। यहाँ तो कुछ भी अंदर आने के बाद तो नहीं पता चलता कि अंदर बस ठीक है अच्छा सिस्टम है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, आने वाली नस्ल के लिए, उनको मतलब बताने के लिए, जब तक देखिए अगर आज मैं देख रहा हूँ कि अगर यानी उनकी तीसरी बरसी पर अगर ये सूरत हाल है तो मुझे नहीं पता कि हम जब जाएंगे या नवाज रजा साहब जाएंगे तो इनकी बरसी कौन करेगा। ये तो नवाज रजा साहब यानी वो तो उनकी बरसी कर रहे हैं, इसमें कोई नहीं, बल्कि जो लोग हैं जिन लोगों ने जाना होता है वो उन्होंने कब्रें अपनी रखी होती हैं, अपने इंतजाम यानी अपना सब कुछ लिखवा के जाते हैं कि हमारा यानी इस तरह करना, वहाँ रखना, ये कोई बड़ी बात नहीं। ये तो मतलब अल्लाह के पास जैसे कहते हैं मदीने में बुला ले मुझे मदीने, तो इसी तरह ये मदीना से भी ऊपर अल्लाह के पास बुला लो, ये तो एक फख्र है। तो ये हमारा वीज़े पर जब अमेरिका के वीज़ा लगता है तो लोग खुशियाँ मनाते हैं, हार में तो मौला के मतलब वीज़े लगे तो उस पर हमें खुशी मनानी चाहिए। लेकिन इसको मेरा ख्याल है, मेरी रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट जो है आप सारे इसको इन्वॉल्व करिए, सारी सहाफ़ियों को इन्वॉल्व करें। ये APP का नहीं है खाली कि वो एक APP सीनियर सहाफ़ी हैं, यानी वो APP के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर तो कई आए और कई गए, लेकिन वो एक मतलब एक मोहब्बत करने वाले इंसान थे। और मार्शल लॉ के दौर में उन सहाफ़ियों में कौन से सहाफ़ी रह गए, पुराने लोगों में कौन है? यानी आप 84 की कोई बात कर रहा था अभी कि 84 में अपना यूसुफ ने बताया कि 84 में तो पुराने सहाफ़ी कहाँ रह गए, और रह भी गए लड़के जो आए हैं बच्चे, उनको तो बेचारों को पता ही नहीं है यानी कि वो कौन से सहाफ़ी होते, निसार बरनी कौन था, वो अपना वो उस्मानी साहब कौन थे। तो इसके लिए आपको ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को बेदार किया जाए, उनके किरदार को इस्टेब्लिश किया जाए। मैं गुजारिश करूँगा ख़ास तौर पर आपकी मौजूदगी में ताहिर साहब और बैठे हुए स्पेशल क्वार्टर बनवाएंगे। हाँ ये गुड, थैंक यू। बड़ी बस मैं यही कह सकता हूँ कि उनके बच्चों को ये फख्र होगा कि हमारी बाप की खिदमत
उनके सारी जो सारी अखलाकात है उनके बच्चे जो है वो फल है, और फल को अगर वो क्रेडिट हो जाएगा तो वो बच्चे खुश होंगे। थैंक यू। ज़ाहिर है कि मतलब कि हमारे पिछले तकरीबन 15-20 साल से जो है जब वो नवाई करते थे उस वक्त से उनसे हमारी इंटरेक्शन रही है, मेरी इंटरेक्शन रही है। तो ज़ाहिर है वो अपने यानी अपने एजाज़ में भी जो है ना वो एक मौलम भी थे, एक जर्नलिस्ट भी थे, राइटर भी थे, एक इंटेलेक्चुअल भी थे। और जो हमारे नए आने वाले सहाफ़ी हैं उनके लिए उनका जो मतलब कि रोल मॉडल आप कह सकते हैं, क्योंकि उनकी कोई भी चाहे मतलब कि उनका अपना एक स्कूल ऑफ थॉट था, लेकिन डिफरेंट चाहे राइटिस्ट हों या लेफ्टिस्ट हों, उनके साथ किसी का जो है ना ज़ाती तौर पे या उसका किसी का मेरे ख्याल में मतलब कि कोई इख्तिलाफ नहीं था। अस्सलाम वालेकुम everyone। जी मैं अली जाबिर हूँ, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान से, इन्वायरमेंटल एंड डिफेंस जर्नलिस्ट। मैं सिर्फ आपको मसूद मलिक साहब की शख्सियत से थोड़ी सी आशनाई एक मुख्तलिफ तराजू से कराना चाहूँगा। देखिए जी, लीडरशिप एंटेल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडर्स आर नेवर फॉरगॉटन। दिस इज द फैक्ट। If this reference is ever held or not, one thing is clear, कि people will remember Masood Malik साहब, रशीद मलिक साहब, खिज़र साहब, नदीम साहब, जितने भी लोगों ने अभी उनको खिराज अक़ीदत पेश किया है, क्यों पेश किया है? There are certain reasons। और मैं क्यों पेश करूँगा? मेरी एक रीज़न है कि मैंने सीखा उनसे, और एक चीज़ उन्होंने मुझे सिखाई थी कि जर्नलिस्ट इज नॉट ओनली द मोस्ट अवेयर पर्सन ऑफ द सोसाइटी, बट ही इज द मोस्ट कमिटेड पर्सन ऑफ द सोसाइटी। कमिटेड कैसे? कि उन्होंने मेरी खबरें पढ़ी, मैं गया टीवी में था, उन्होंने एक बात मुझे की, जेंटलमैन आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ पैशन। मुझे लगा ये इन्होंने क्यों कहा है। वो मेरी खबरें पढ़े थे, उन्होंने मुझे एक बात की, बी क्लियर इन योर माइंड, आइदर यू वांट टू बी अ जर्नलिस्ट और नॉट, इफ नॉट यू मे गो नाउ। अगर जर्नलिस्ट बनना है तो टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्ट दिस प्रोफेशन विद ग्रेट ऑनर एंड हार्ट। यही चीज़ उन्होंने हमें सिखाई कि खबर से मोहब्बत करें, पेशे से मोहब्बत करें, और फिर एक लीडर जो होता है वो लीडर पैदा करता है, वो प्रमोट करता है, ये एक तड़प पैदा करता है अपने सब ऑर्डिनेट के अंदर कि वो क्यों, वाई ही शुड बी अ जर्नलिस्ट एंड वाई ही मस्ट वर्क विद डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। मसूद मलिक साहब ने की। आप उनके थ्रू आउट प्रोफेशन में जितने नशेबो फराज उन्होंने देखे, एक चीज़ जो निचोड़ निकलेगा वो थी कमिटमेंट। आखिरी टाइम तक भी उनके अंदर का जर्नलिस्ट उतना ही तरोताज़ा था जितना जब वो जवान थे या किसी दौर में अपनी पीक पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूद भाई मेरे फूफो के बेटे थे, उनको बेटा, लेकिन हमारा रिश्ता ऐसा था कि उसको एक्सप्लेन करते हुए भी मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो वो मेरे से मतलब उस वक्त तो बच्चे नहीं थे, बच्चों से कहीं ज़्यादा मेरे से प्यार करते थे। ये नहीं था कि बाकी भी मेरे ज़ाहिर भाई भी थे, उनके और भी कज़न्स थे, लेकिन एक वो आप समझिए सितारा मिल गया या एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो गई कि वो बिल्कुल यंग एज में, बिल्कुल जब मैं छोटा था, वो जब हम डिस्कशन करते थे मैं बहुत ज़्यादा उनके साथ टाइम गुजारा और जाता होता था उनके साथ। उनके प्रोफेशनल जब वो उनके तामीर में थे फिर भी मैं उनके साथ जाता रहा, बहुत कम गया, लेकिन जब वो पीपीआई में गए तो बड़ा रेगुलरली मुझे साथ ही ले जाते थे कि चला, अगर नहीं भी होता था तो कहीं भी होते थे तो मैं चला जाता था, मुझे पता होता था वहाँ पे ड्यूटी है बैठे हुए तो तो मेरा आस्ता आस्ता वो ज़िंदगी में मेरे मतलब एक बहुत रोल मॉडल यूट्यूब मतलब इस हद तक कि मुझे एक कहते हैं कि बिल्कुल आइडियलिज्म की हद तक बहुत ज़्यादा शफकत भी उनकी इतनी थी कि वो ज़रा सा भी कोई मेरा ज़िंदगी में मेरे भी काफ़ी बड़े सीरियस इशू हुए। जब मैं फौज में गया, शुरू में ज्वाइन की, उस वक्त मेरे साथ एक बहुत बड़ा सैड इंसिडेंट हुआ कि ज़ाहिर इस फॉर्म में शायद मैं एक्सप्लेन न करूँ, लेकिन ये कि द वे ही प्लेड हिज रोल टू गेट यू आउट ऑफ दैट एंटायर एपिसोड जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट थी। तो वो मैं समझता हूँ कि सगे भाई भी इस दौर में आप भी जो है ना ही मे नॉट टेक दैट अच्छा। तो उनकी कंपैशन, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, उनका एज अ ब्रदर, एज अ फादर, एज अ सन, एज अ फ्रेंड,
एज अ कुलीग, मतलब हर रूप में मैंने उनको देखा है, बहुत क्लोजली देखा है उनको। तो आई हैव रियली, मतलब मैं आई फील सो स्मॉल कि आई शुड गिव एक बहुत डायरेक्ट कमेंट उनके बारे में। बहुत ही ज़बरदस्त इंसान थे, और ऐसे इंसान थे जो मैं समझता हूँ सदियों में कहते हैं ना लोग कि यार ये बंदा जो है ना, ऐसे लोग जो है वो शायद सदियों में वी ऑल केम हियर। बहुत सारी हमारे खानदान में और भी बहुत लोग तो शायद हम वी आर कॉमन पीपल, बट ही वाज नॉट अ कॉमन पर्सन, ही वाज समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। बहुत ही अल्लाह लोग, बहुत ही अल्लाह से और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे पता है, बिकॉज आई हैव बीन वेरी वेरी क्लोज विद हिम इंटीमेट। मतलब ऐसी भी टाइम आए हैं कि हम बैठे हुए होते थे दोनों अकेले, तो मुझे कहते थे यार ये निकाल, वो इतनी बड़ी जो है ना वो वाइट पेपर्स की जो है ना वो थदा पड़ा होता था, कहते थे पेन पकड़, और वो लेटे होते थे रिलैक्स, मुझे कहते थे लिखना शुरू कर, वो बोलना शुरू करते थे। मुझे नहीं पता लगता था कि वो 2 घंटों में मैंने 200 सफ़े लिख दिए, उन्होंने मुझे डिक्टेट करा दिए या 400। बड़ी यूं सो आंखें बंद हैं, बोली जा रहे हैं और मैं लिखता जा रहा हूं। वो मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि वो एक समंदर थे। समझ लें कि उनको एक यूं वो अपनी लहर में होते थे, तो ऐसा लगता था जैसे आमद होती है ना ऊपर से, जैसे एक बहुत शायर होता है जिसको आमद होती है बहुत एक स्पेसिफिक टाइम से, इस तरह आमद होती है। और फिर उनकी जो मिलनसारी थी, जो लीडरशिप क्वालिटी थी, वो सारी ऑलरेडी माशाल्लाह लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दी है। बहुत इंटीमेट, बड़े क्लोज रहे हैं आप लोग। तो एज अ फैमिली मेम्बर, वन ऑफ दी फैमिली मेम्बर्स ऑफ मुस्लिम मलिक, मेरा ख्याल है ये सलाह हमारे लिए तो शायद हमारी ज़िंदगी में पर्सन के, तो मेरी दुआ है उनके लिए अल्लाह पाक उनको करोड़ करोड़ जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। मेरा मासूम मलिक साहब से कोई प्रोफेशनल इकट्ठे काम करने का मौका तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मेरा उनके साथ एक बड़ा दिलचस्प रिश्ता था। मेरे लिए बड़े वो एक बहुत बड़े प्रमोटर थे जो मुझे यानी मुश्किल में खड़ा रहने के लिए हौसला दिया करते थे। और मैं चूँकि एक ऐसा नफ्स गैर मुतमइन्ना था, मैं जहाँ भी जाता था वहाँ मुझे कोई शिकायत पैदा हो जाती थी। मैं किसी तंजीम में हूँ, किसी यूनियन में हूँ, किसी ग्रुप में हूँ, मुझे शिकायत पैदा हो जाती थी। मुझे लगता था कि यहाँ पे मामला यूँ नहीं यूँ होना चाहिए, तो मैं हर वक्त अपने तय कुछ न कुछ किसी चक्कर में लगा रहता था। और ट्रेड यूनियन में चूँकि मेरा ज़्यादा टारगेट वो था, तो मुझे मैं खाम में प्रेस क्लब के इलेक्शनों में भी खड़ा हो जाता था। मुझे हालांकि पता होता था कि मैंने जीतना नहीं है, क्योंकि मेरा उस मेन स्ट्रीम लाइन से मैं अलग हूँ। लेकिन मैं जब हिम्मत हारने लगता था तो मसूद मलिक साहब एक ऐसी शख्सियत है, मैं उनके लिए कुरान की आयत में पढ़ूँगा कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि बेशक वही तो ज़ात है जिसने ज़िंदगी और मौत पैदा की ताकि जांच सके तुम में से कौन अच्छे अमाल करने वाला है। तो मसूद मलिक साहब नेक अमाल का एक पूरा गुलदस्ता थे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आज है, मैं मसूद मलिक साहब का बड़ा बेटा हूँ। तो मेरे पास इतने ज़्यादा तो अल्फाज नहीं है पापा के बारे में, लेकिन मैं सबसे पहले आपका नवाज़ पर मैं ही करना चाहता हूँ। अभी यानी पिछले 3 साल से जो है हमेशा से पापा की कुछ ना कुछ जो है इस तरह यादगार जो आपने रखी है, तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप सबका जो आप लोग आज तशरीफ लाए हैं। पापा के बारे में मेरे पास ज़्यादा प्रोफेशनल तो है वो नहीं है इतनी इंफॉर्मेशन कि उनका कैसे था। जिस तरह आप लोगों ने बयान किया, डिस्क्राइब कर रहे हैं, मैंने सुना है आप सब से, और पहले भी जो मेरा जिस तरह पापा के दोस्तों से मुलाकात की, जिस तरह के अल्फाजों में उनको बयान करते रहे हैं, वेरी नाइस मीटिंग। लेकिन मैं थोड़ा सा ये कि पर्सनल लाइफ के बारे में उनके जानता हूँ। उनको यही देखा है कि जो घर पे जो उनका तरीका सलीका और वैसे जनरली जो है जो हमारे साथ हैं हमारे लोगों के साथ जो एक उनका जो आजी से पेश आना, और ये कि जनरली मेरा वो कज़न है बिलाल खड़े हुए सामने, मैं उनसे बैठा बात कर रहा था, तो मुझे कह रहे थे कि वो एक जो थे ना एक बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे। और मैंने नोटिस किया कि हर कोई जो है ना वो ये डिस्क्राइब करता है आजकल के ज़माने में। अगेन मैं ये बात कहता हूँ कि पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल बात है। पॉजिटिव रहना जो है ना एक थॉट ही होता है इंसान का, वो ख्याल ही होता है कि जी मैं जो हूँ ना बस इस तरह कर लूँगा, इस तरह कर लूँगा, यूँ बेहतर हो जाऊँगा। लेकिन अपने आप को कॉन्स्टेंटली उस ट्रैक पे रखना जो है ना वो आसान बात है। तो मेरे ख्याल में वो जो है उन्होंने हम सब के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए भी, लेकिन ये कि अपने बच्चों के लिए भी एक बहुत अच्छी एग्जांपल सेट की है। और मैं जब हूँ वो
ज़्यादा मेरे पास अल्फाज नहीं है, बस मैं इसके साथ ही रहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम मलिक साहब को भी कहूँगा कि इन्होंने भी अपना एक नज़रिया रखा और मैं इनके पास जब भी गया, जब भी इनसे मुलाकात हुई, यानी मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जमात इस्लामी रहा हूँ इसके तौर के ऊपर, तो मैंने इन्हें बहरहाल एक अच्छा इंसान पाया। APP में जो मसाइल थे वो अपनी जगह है, ये खबरों के लिहाज से और हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करने के लिहाज से, लेकिन मैंने इनका पूरा दौर देखा है और बड़ा अच्छा। अल्लाह ताला से बस मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे, इनके बच्चों को हिम्मत दे और सब जर्नलिस्टों को भी कोशिश करना चाहिए कि इसी तरह अपने मामला में कमिट करें। मरजा साहब, आफा साहब, सदीकुल फरद साहब, मारी साहब, शमसी साहब, मैं सबसे पहले मसूद मलिक साहब की ये बात करना चाह रहा हूँ कि मसूद मलिक साहब में यूनियन में था तो जितने वर्करों के हम काम लेके जाते थे, मलिक रशीद साहब भी हमारे साथ, हम सारी टीम, तो वो वर्करों के मसाइल हल करने में खुशी महसूस करते थे। और मसूद मलिक साहब मेरे पड़ोसी भी थे, अल्लाह उनको जन्नत में दोस्त में अल्लाह उनका आमद फरमाए। अभी भी जब हम मस्जिद में जाते हैं, उनके घर के पास से गुजरते हैं ना, तो हमारे मस्जिद इमाम साहब भी कहते हैं यार मसूद मलिक साहब बहुत अच्छे इंसान थे। आमिर के सामने, जाबिर आमिर के सामने हक की बात करना कोई आम बात नहीं है। लोग यहाँ पर एक दूसरे से मुताल्लिक इसलिए बात भी नहीं करते कि शायद वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा या किसी मसले का लोग शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे लोग बड़े अंदर से बड़े दलेर लोग होते हैं जो कलमा हक कहते हैं, और ये कोई मामूली बात नहीं होती है। और ये अल्लाह ताला ने आपको एक ताकत अता की है, क्योंकि आप रूहानी तौर पर बड़े मजबूत लोग जो होते हैं वो आपको सच की बात कर सकते हैं। हमेशा यही कहा करते थे कि हमारा इंसान का किरदार होता है, जब किरदार मैटर करता है, जब आप जिंदा हैं लोग फिर भी आपसे मुतालिक अच्छी बात करेंगे, और जब आप मर जाएंगे तो किरदार अगर आपका होगा तो लोग आपको हमेशा से लफ्ज़ों में याद रखें। तो मैं समझता हूँ कि आज जब उनका किरदार है मसूद मलिक साहब का, अल्लाह ताला उन्हें करवट जन्नत में जगह था हमें, कि वो अपने किरदार की वजह से हमारे दिलों में से रात को मतलब घर जाने के बाद भी वो काफ़ी देर तक टच में रहते थे। तो ये उनकी खसूसियात में से था। और जैसे भाई उन्होंने जिक्र किया कि कुछ लोगों का रोजगार भी मुंसलिक हुआ, अपने यूसुफ साहब भी आए और बहुत सारे लोग आए। और अगर ये वाला जो दौर मसूद मलिक साहब का दौर होता तो शायद ये रेगुलर हो चुके होते। सब मेरे मौसम भी हैं, फील्ड में मुझे वही लेकर आए। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। हमने देखा कि इंतहाई अंबर और कभी भी उन्होंने कोई ये नहीं देखा कि जी ये किसी ग्रुप का है, ये किसी तंजीम का है, ये किसी खास इलाके का है। उन्होंने हमेशा हमदर्दी से लोगों की, जब वो एक बड़े होने पर मैनेजमेंट डायरेक्टर के होने पर फायज थे तो उन्होंने सबकी बातें भी सुनी और जिस कदर हो सकता था उन्होंने, जितने भी वर्कर्स थे वहाँ पे, जो यूनियन थी, दोनों ग्रुपों की मेरे ख्याल में यूनियन थी उस टाइम में, उन्होंने कहा कि ये जो 10,000 वाले 18,000 वाले, तो एटलीस्ट अगर ये रेगुलर नहीं हो सकते तो इनकी सैलरी जो है वो आप यूनिफाई कर दें, ग्रेड वाइज करते हैं, जो प्रिवेलिंग ग्रेड वाइज जो सैलरी दे रहे हैं उसके मुताबिक कर दें। और उन्होंने वो की, और आज भी वो लोग ग्रेड वाइज सैलरी ले रहे हैं। यानी कि आप ये देखें कि 6 साल गुजर गए या 5 साल गुजर गए, वो लोग रेगुलर नहीं हुए लेकिन ग्रेड वाइज सैलरी वो ले रहे हैं, यानी कि परमानेंट के बराबर। तो ये इनका बहुत बड़ा कारनामा था। मुझसे बात की, बेटा इस दस्तूर की इज्जत के लिए हम सबको मिल के कोशिश करनी है, और पाकिस्तान एक ख्वाब है कायद आज़म का, अल्लामा इकबाल का। तो हमारे ये है कि मुआशरती अक़दार आहिस्ता आहिस्ता पीछे होती जा रही हैं, जिनको हमें फिर भी वापस लोगों को दोबारा से याद करवाना है कि हमारा मकसद क्या था इस मुल्क को बनाने का। और सर आपको मैं बहुत ज़्यादा दिली मशहूर हूँ कि जिस तरह आप मलिक साहब से मोहब्बत करते हैं और अपने प्रोफेशन से, और APP में भी, और बहुत सारे जर्नलिस्ट के मामला आप देखते हैं, अल्लाह ताला अपने लोगों से ऐसे काम ले लेता है जैसे उसने मलिक साहब से लिया, आपसे ले रहा है। मसूद मलिक साहब बड़े कारकुन दोस्त थे। जब कभी छुट्टी चाहिए हो, ऑफ द रिकॉर्ड छुट्टी चाहिए हो, या किसी जगह जाना हो या किसी जगह ना भी जाना हो, अब उन दिनों मुस्लिम लोगों की तरफ क्या हुआ करता था आपको याद है, तो कई हम अवॉइड करते थे। तो मसूद मलिक साहब ने बड़ा लीडेंट और बड़ा हमारे साथ बर्ताव रखने का, कोई बात नहीं, तस्वीर वगैरह अरेंज कर लें, या सुबह कभी लेट भी आना हो मीटिंग को प्रिजाइड किया करते थे। तो हमारे साथ जितना टाइम गुजारा बहुत अच्छा टाइम गुजारा, और उन्होंने कभी भी हमें तंग नहीं किया। कभी उन्होंने जब छुट्टी मांगी, हाफ डे छुट्टी मांगी, या किसी जगह उन्हें कोई हमने अपना ज़्यादा काम भी कह दिया कोई उनको, तो उन्होंने सारे काम छोड़ के सबसे पहले हमारा काम किया, सबसे पहले हमारी बात सुनी। चाहे हमारी तनख्वाहों का मसला होता था, उस समय तो बोनस वगैरह आया करते थे, अच्छे दौर थे, अब तो तनख्वाह ही नहीं आती। बोनस उन्होंने कई दफ़ा हुआ कि बोनस भी लाजमी आ गई इस पर, तो काफ़ी इंसान थे। मैं अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, और हमारा बड़ा प्यारा दौर उनके साथ गुजरा है।
और अल्लाह उनके बच्चों को भी सेहत तंदुरुस्ती दे और उनका वो जान अच्छा करे। मैं तमाम अहबाब का मगर ख़वातीन हज़रात सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मौसम की ख़राबी और सर्दी की शिद्दत के बावजूद भी पिछले साल से ज़्यादा हमारी हाज़िरी रही और कोशिश तो मैंने की कि कोई आदमी रह ना जाए जिसको इतना ना करूँ, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अफसर और शमसी साहब का और दीगर अहबाब का। कुछ लोगों ने तजर्बात अपने बताए जो उनसे काम किए, मैंने भी उनके साथ काम भी किया है और दोस्ती भी थी, दोनों चीज़ें। मैं नुमाए वक्त में उनसे ज़्यादा पहले से था। जब वो आए तो वो तो डायरेक्ट रिपोर्टर लगे, फिर चीफ रिपोर्टर बन गए, फिर मैंने उनके मतहत भी काम किया और हमारी दोनों की दिलचस्पी भी एक ही बीट में ज़्यादा होती थी। हालांकि इस ज़माने में बीट के लिए लोग कत्ल भी कर देते हैं दूसरे को, कोई ना मेरी बीट को हाथ ना लगाए। तो वो दरवेश आदमी थे, कभी आए कभी नहीं दी खबर, और मुझे कहा था यार खबर ना मिस हो आप दे देना, पीछे ये ना हो कि मेरे बीट की खबर रह ना जाए। तो फिर जब कभी वो आज पे गए, फिर कभी कोई और मसला हुआ, तो उनकी जगह मैं नवाज शरीफ के साथ, हालांकि मेरी इस्लाम तो ज़्यादा थी लेकिन मेरी चूँकि बीट नहीं थी तो वो मैं ही उनको कवर करता रहा। मैंने कहा जी वो फिलहाल हज पर गए हुए हैं, फिर पीछे मेरे भी सारे काम हैं। तो एक लिहाज से मैंने देखा कि मसूद मलिक साहब की बात की, उन्होंने कहा एक बहादुर आदमी की, तो मैं सच्ची बात कहूँ कि जाबर शख्स के सामने कलमा एक बारी बात में आपको बताऊँ, एक्चुअली आई वाज सीनियर मोस्ट कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव कवर करता था उस वक्त। ये चीफ एग्जीक्यूटिव तौर पर शरफ, लेकिन उस वक्त के रेजिडेंट एडिटर साहब ने जानबूझ कर मुझे ड्रॉप किया। एक मसूद मलिक साहब जाने जाना था, दूसरा जाना था सैयद अब्दुल नासिर साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, अब जिंदगी नहीं है उनकी नहीं है, उन दोनों तीनों को ले गए। तो मैंने थोड़ा रिएक्ट किया, मैंने कहा यार कमाल है, मुझे वहाँ ले गए। जब वहाँ सवाल हो गया तो फिर मुड़ के वापस आया। मैं क्या पूछूँ, अब तो तुम्हारे साथ जो कुछ होगा मैं भी बच गया, मैं भी वहाँ कोई सवाल अदा कर रहा था तो मजाक कर रहा, मैं क्या तुम गया तो वाकई। लेकिन वो बड़ी बात थी, अभी वो यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस से दफ्तर तक पहुँचे तो उस वक्त तक गालबन DGI SPR या कोई जो भी थे जिन्होंने मजीद निज़ामी साहब को पावर कराया जी कि ये साहब के आदमी ने किया है, उनका ऑर्डर आ गया जी कि टेलीफोन पे इनको कहें जी कल से टेस्ट पे चले। वो महीना डेढ़ उन्होंने काम किया टेस्ट पे, और मेरा ख्याल है शायद कुछ और भी काम करते तो निकालने वाली बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने खुद महसूस किया कि जब यहाँ पर में कदर ही कोई नहीं है, छोटी सी बड़ी बात है, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये निकालने वाली बात नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन बहरहाल वो भी एक देखे ना, जाबर हुक्मरान की उसमें भी टेलीफोन कॉल बड़ी होती है ना, और हमारा अपना रवैया बदल देते हैं। फिर वो बाहर भी रहे, बड़े ज़्यादा बेरोजगारी भी बर्दाश्त की, सब कुछ किया, लेकिन एक लिहाज से एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के जो होते हैं खूबियाँ, वो उनमें तमाम चीज़ें मौजूद थी। वो दूसरे अपने मतहत जो काम करने वाले थे उनके साथ भी रवैया बहुत पॉजिटिव और बड़ा ऐसा था, मेहरबानी तौर पर मिलते थे, ये कोई सख्त गिरी नहीं करते थे ना, उनका रवैया ऐसा था कि कोई लोग उससे नाराज़ हों। तो हमारे दरमियान ये तलक भी था, और इसके अलावा दोनों की सोच भी एक जैसी थी। फिर जब वो रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनिट जर्नलिस्ट का सदर बनाने के लिए वो जो हमारे सारे दोस्त बैठे पड़े, तो जब वहाँ तय हो गया तो मैंने कहा जी, अब उन्होंने कहा जी नवाज साहब अब आपकी जिम्मेदारी है कि इन्होंने इलेक्ट होना है। मैंने कहा जी मैं तो करूँगा, लेकिन आप जो हेरा फेरी करेगा फिर मैं उसके खिलाफ आऊँगा। वहाँ हमारे एक दोस्त है जो आजकल वो एक उनकी मतलब है अपनी जमाती वाला एक सदर है, वो अपने आप को डिक्लेयर करते हैं कि मैं सदर हूँ। वो खड़े होना चाहते थे, कहते थे आप पहले मुझे सदर बना दे, मेरी भी इनके साथ, लेकिन उन्होंने इनके साथ तावन नहीं किया। लेकिन हमने कहा पूरी तरह, जो 2-3 साल रहे सदर, तो मसूद मलिक साहब क्या नाम है, वो जो था ना उनका रवैया, तो ट्रेड यूनियनिज्म का होता है जिस दोस्ताना और सारा काम करना। जब उनके लिए मुलाजमत की बात हुई तो मैंने परवेज रशीद साहब से पूछा, तो परवेज रशीद साहब तो ये कहते थे कि जी हमारे पास जगह ही कोई नहीं। तो फिर मैंने देखा तो अचानक मामला प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में आया, और फिर उन्होंने कहा, जिससे वो तारिक स्मैल बता रहे थे,
तो मुझे फिर कहने लगे परवेज ऋषि साहब देखिए जी आपके दस्तूर को फिर सदर को MD PDU बना दी। मैंने कहा अब आप कहने के क्या फायदा जबकि उनकी पहले काम हो गया। उन्होंने आकर APB में एक अच्छे टकूस चुने, यानी MD आदमी हो तो उससे लोग नाराज ही रहते हैं क्योंकि MD की ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता है या MD की सख्तगिरी करता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने रवैये से ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने गिर इकट्ठे किए। ये वजह का आज उन्हें हमें याद करें। सच्ची बात है, कोई देखिए कोई ज़ाती मसला नहीं, कोई और हमारी कोई बात नहीं है। हम तो समझते हैं कि हमारा दोस्त है, उसको याद रखना चाहिए। एक सीनियर जनरल से लोगों को भी, अब यहाँ जो लोगों ने बातें की हैं, ये मेरा ख्याल हम जलसा करते हैं तो शायद ना हो। ये जब आप सबको मौका मिला 5-5 मिनट 10-10 मिनट 4-4 मिनट बात की, हर एक आदमी ने अपने तजुर्बात बताए, अपनी उनके साथ जो फीलिंग थी। वो हमारी तरह के मिडिल क्लास के लोग थे और ग्वाल मंडी में उनका घर था, आना जाना हमारा दोस्ती रही, सब कुछ रहा, तलक रहा। जहाँ हम मिले तो एक बार तो मैंने उनको पहचानने से इनकार कर दिया। वो साहब के एडिटर लगे तो उन्होंने दाढ़ी अपनी बढ़ा दी थी, तो मुझे खास तौर पर अंदर बुलाया उन्होंने। जो मालिक हैं क्या नाम उनका, महताब साहब ने, तो मैं बैठ गया। तो मैंने इनके साथ कोई सलाम था के अलावा कुछ नहीं किया। मैं बैठा, वो मुस्कुराते रहे। बड़ी देर के बाद मैं पूछा तो मुझे पहचाना मैं कौन हूँ। फिर मैं तो पहचान गया आवाज से। तो उस वक्त ये ताज़ा हज करके आए थे। एक लिहाज से बगैर उनका जो रुझान था वो मजहब की तरफ बहुत ज्यादा था। वो अपने आप को अल्लाह ताला की इबादत में और उसमें मसरूफ रखते थे। फिर कारकुनों के साथ उनका रवैया अच्छा था। तो याद रखते हैं इंशाल्लाह जो बातें यहाँ डिस्कस हुई हैं हम इनको फॉलो करेंगे कि किसी न किसी लिहाज से लोगों को पता होना चाहिए। ना किसी को पता लगेगा कुछ अर्से बाद सऊद कौन था, जियाउद्दीन कौन था, सीआर शमसी कौन था, मसूद मलिक कौन था। तो हमारे लिए तो ये लोग हमारे कोलीग रहे हैं और कुछ उनसे सीनियर भी थे। मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ खास तौर पर ताहिर खलील साहब। इस वक्त मेरे हम उम्र हैं दोनों इकट्ठे, लेकिन ये इनकी बात बड़ी मसरूफियत थी, उन्होंने बड़ा वक्त निकाला। और बाकी जो अहबाब आए हैं इनका भी शुक्रिया अदा करूँ। जे सारिफ साहब का भी खास तौर पर इनका मुझे फोन आया तो मैंने कहा फिर आप जुमरात को यहाँ आए। और इतनी लंबी तकरीर तो मैंने इसलिए किया कि तारिक अजीज साहब जो भूल गए थे तो वो मुझे कह रहे थे, मैंने कहा तो आप पहुँच रहे और कह रहे पहुँच जाऊँगा। तो तारिक अजीज साहब को आखिरी जुमला कहना चाहे तो बस मैं तो खत्म कर रहा हूँ। मलिक साहब पे आपने बहुत लोगों दोस्तों ने कहा होगा जी, तो एक जुमला उन पे कोई इतनी मुख्तसर बात की नहीं जा सकती। मैं इंतहाई शेख और नफ्स साहब के उस्ताद भी थे, हमने सीखा भी उनसे। नहीं सिर्फ सहाफ़त सीखे बल्कि उनसे हमने इंसानियत की और ज़िंदगी के असलूब भी सीखे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।